آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ گولڈن فنچز کے مستقبل کے بارے میں ہے کہ گولڈن کا جو ہے آنے والا مستقبل ہے وہ کیسا ہے۔ تو دوستوں میں بتاتا چلوں کہ میں نے 3000 روپے کا پیئر لیا تھا کامن گولڈن کا، آج جو ہے 15,000 روپے کا پیئر ہے۔ میں نے آج تک اتنا پیسہ کسی برڈ میں نہیں دیکھا جتنا گولڈن فنچ میں منافع ہے۔ 15,000 والا جوڑا 100 روپے کی فیڈ کھاتا ہے اور آپ اس سے 2,40,000 روپے کیسے کما سکتے ہیں۔ گولڈن فنچ ایک ماہ میں 2 کلچ بھی کر جاتی ہے، اور اگر کسی کی اچھی ڈائٹ پلان ہے اور اچھے وٹامن دے رہا ہے تو یہ تیسرا کلچ بھی کر جاتی ہے۔ ایک کلچ جو گولڈن فنچ کا ہے وہ 4 سے لے کے 7 تک جو ہے انڈوں کی ایوریج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل احسان فنچ فارمنگ۔ دوستو آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ گولڈن فنچز کے مستقبل کے بارے میں ہے کہ گولڈن کا جو ہے آنے والا مستقبل ہے وہ کیسا ہے۔ تو دوستوں میں بتاتا چلوں کہ میں نے 3000 روپے کا پیئر لیا تھا کامن گولڈن کا، آج جو ہے 15,000 روپے کا پیئر ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا مستقبل کیسا ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں آنے والے دنوں میں اس کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید تیز سے تیز تر ہوتی جائیں گی۔ بلو گولڈن مزید ریٹ جو ہے بڑھاتا جائے گا، لٹینو گولڈن کا ریٹ اور زیادہ ہو جائے گا، کامن گولڈن کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گولڈن فنچ ایک کمرشل برڈ ہے، اس نے زندگی میں کبھی اپنا ریٹ نہیں گرایا۔ کسی بریڈر کو جا کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس سے یہ پوچھ لیں کہ یار اس برڈ نے کبھی اپنا ریٹ گرایا؟ نہیں، گولڈن فنچ اپنا ریٹ نہیں گراتی، کیونکہ جو گولڈن فنچ کا جو مستقبل آنے والا ہے اس میں بھی گولڈن فنچ جو ہے ٹاپ پہ رہے گی۔ آپ لو برڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں، لو برڈ کی ہر موٹیشن جتنی بھی آئی وہ ہمیشہ آئی اور گئی، نیچے آئی، کبھی اپ لائن آ جاتی ہیں، کبھی کوئی اور موٹیشن آ جاتی ہیں، لیکن جبکہ فنچ کی فیلڈ میں آپ دیکھیں صرف زیبرا کو نکال کے یا کمرشل آئٹم میں نہیں آتے، تو اس کے ہٹ کے جو کمرشل برڈ ہیں جس طرح گولڈن ہوگی اور جاوا بھی تھوڑا سا 19-20 ہوتا ہے، لیکن جو ہے گولڈن فنچ نے جو ہے کبھی اپنا ریٹ نہیں گرایا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے ریٹ گرایا ہو، اس نے ہمیشہ ریٹ بڑھایا ہی ہے۔ اور جب کرونا کے دن تھے تو اس وقت اس کا جو پیئر تھا وہ آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں، 2-2.5 سال پیچھے، تو تقریباً 6,000 روپے 7,000 کا پیئر تھا، اور اس کے بعد ایک دم سے جو ہے 15,000 روپے پیئر آ گیا۔ لوگوں کی ریکوائرڈ کے اوپر لوگوں نے کاروبار سرچ کیے، اس وقت کاروبار سارے بند ہو گئے اور جو ہے فنچ کا ریٹ جو ہے اوپر چلا گیا، اور اس کا تو ریٹ بلکہ نیچے آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو انڈے بچے دینا بند نہیں ہوتی، کاروبار جب چل رہے ہوتے ہیں جبھی لوگ مال لیتے ہیں، لیکن اس کا ریٹ پھر بھی اوپر جاتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خوبصورت برڈ ہے اور اس کے شوقین بہت زیادہ ہیں اور تھوڑا سا سینسٹیو ہے، تو اس لیے جو نئے شوقین ہیں ان کو رکھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، کسی ایسے لوکل بریڈر سے لے لیتے ہیں جو ساری باتیں آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا۔ جبکہ دیکھا جائے تو جتنا پیسہ گولڈن فنچ میں ہے اتنا پیسہ فنچ کے کسی بھی فیلڈ کی جو ورائٹی ہے اس میں نہیں ہے، اور پھر اس میں اگر آپ پیسہ لگاتے ہیں تو بلا جھجک بغیر ڈرتے ہوئے آپ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں۔ اگر کوئی مجھے دوست کہے کہ میں گولڈن فنچ کے 5 پیئر لگا لوں تو میں کہوں گا لگا لو، اگر کوئی کہے 10 لگا لو میں کہوں گا لگا لو، اگر کوئی 100 کہے تو میں کہوں گا لگاؤ، اگر کوئی کہے 500 لگاؤں لوں تو میں کہوں گا لگاؤ، اور اگر کوئی دوست کہے کہ یار جاوا کے لگا لوں، فنچز کے لگا لوں یا کسی اور ورائٹی کے، تو ان کے جو ریٹ ہیں وہ تھوڑے سے 19-20 ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بھی کمرشل آئٹم ہے، اچھی آئٹم ہے، لیکن ان کے ریٹ جو ہے 19-20 ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن گولڈن کی اگر بات کروں تو اس نے پوری زندگی میں کبھی اپنا ریٹ نہیں گرایا۔ کسی بڑے پرانے بریڈر سے جا کے پوچھیں جو 20-20 سال سے 25-25 سال سے جو فنچ کا شوق کر رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ یار کبھی گولڈن فنچ نے اپنا ریٹ گرایا؟ وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ یار نہیں، کبھی نہیں گرایا۔ تو جو پرانے شوقین ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے، اور گولڈن فنچ کیا چیز ہے۔ اس کے لیے سب سے جو اہم 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے لیے سکیٹ اور رونی ویٹ۔ جس کے پاس سکیٹ ہے وہ بندہ کامیاب ہے، سکیٹ اور رونی ویٹ والا۔ سکیٹ اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ کینکر کا اور مائٹس کا پرابلم آتی ہے، تو کینکر کا جو ہے اس کا علاج ہے وہ آپ رونی ویٹ دیں اور سکیٹ لگائیں۔ اس کو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے گولڈین کو، وہ کینکر کا آتا ہے اور گلے کی خراش کا، تو اس کے لیے آپ رونی ویٹ کا 5 دن کا کورس کروا دیں، آپ کو 3 ماہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سکیٹ لگا دیں، وہ مائٹس نہیں آئیں گے، جراثیم نہیں آئیں گے، برڈ کھانا پینا اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ تو نئے شوقین کو ان 2 چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، یہاں سے وہ مار کھا جاتا ہے اور اس کا شوق جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں بتاتا، تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں نا اپنے جتنے بھی بھائی ہیں، میرے دوست ہیں جو نئے شوقین ہیں، ان کو ہر بات کا پتہ ہو اور ہر ایسی چیز کا جس سے اس کا برڈ ضائع نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ سے مجھے فائدہ ہوگا، تو ہمیشہ علم بانٹنے سے علم بڑھتا ہے۔ تو اکثر لوگ باتوں کو چھپاتے ہیں،
लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास स्कैट रोनिवेट हो तो आपका बर्ड कहीं भी नहीं जाता। और अगर मैं इसकी बात करूं ब्रीड की, तो इसकी ब्रीड के क्या कहने, आपको क्या कैसे बताऊं कि 15,000 रुपये का जोड़ा है। और जो है एक क्लच में 4 से लेके 5 6 7 तक की भी एवरेज चली जाती है अंडों की। अब आप देखें, एक बच्चा अगर आप 2500 रुपये का भी लगा रहे हैं, छोटा बच्चा यानी कि सिर्फ जस्ट सेल्फ, अगर बड़ी एज का होगा तो वो 35 से 4,000 का भी सेल हो जाता है, यानी जिसके मुंह के बबल ख़त्म हुए होते हैं। तो कोशिश करें हमेशा बड़ी एज का इसका बच्चा लें। ये भी आपको बताता चलूँ, चाहे आप 3,000 35 से 4,000 का ले लें, लेकिन आप थोड़ी सी बड़ी एज का बच्चा लें, बिल्कुल सेल्फ बच्चा ना लें। वो अक्सर खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको खाने पीने की इतनी आदत नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा पुराना बच्चा थोड़ा सा महंगा मिलेगा, वो आपके पास सर्वाइव भी करेगा। आप कह लें कि अगर आप 4,000 का बच्चा ले रहे हैं, आधी कीमत में बच्चा पड़ गया आपको, और वो कलर के करीब आया हुआ है, कलरों के करीब, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल छोटा बच्चा आपने 4,000 का ले लिया, जो कलरों के करीब आया हुआ है वो आप उठा लें, और वो आप 2 ढाई महीने रखेंगे तो आपका डबल कीमत का हो गया। 15,000 से 16,000 का पेड़ है। और कोशिश करें स्कैट लगवा के बच्चे को लें। मैं अपने सारे बर्ड को स्कैट लगा के देता हूँ, जिन भी भाइयों को देता हूँ, ताकि बच्चा सर्वाइव होने में उसको मार्क्स ना पड़े। और रोनीवेट का कोर्स करवा देता हूँ, ताकि जो नया शौकीन है उसका शौक जो है ख़राब ना हो। तो जो लोग लोकल काम कर रहे हैं वो बच्चे बेच तो देते हैं, लोग ले भी लेते हैं थोड़ा मुनासिब समझ के, लेकिन वो बच्चे आधे जो हैं देखा जाता है कि जो आधे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। या अगर आपने बाहर से उठाएं तो कोशिश करें उनको सॉफ्ट फूड डालें, और अंडा ब्रेड जो है उनका ख़त्म ना होने दें, और स्कैट और रोनीवेट का उन्हें कोर्स करवा दें। और सर्दियों में इनको सिर्फ इसको मसला होता है सर्दी से, और गर्मी में इसका कोई मसला नहीं। तो सर्दी में आप इसको कवर्ड रखें, और इसका जो टेम्परेचर है वो 30 से लेके 35 तक रखें, तो ये बहुत जो है अच्छा चलती है। अच्छा, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, बीच में बात रह गई ब्रीड की। मैंने आज तक इतना पैसा किसी बर्ड में नहीं देखा जितना गोल्डन फिंच में मुनाफा है। तो गोल्डन फिंच में डरते भी नहीं है लोग पैसा लगाते हैं। क्यों, कुछ बर्ड ऐसे हैं, लोग बर्ड लगाते हैं वो फिर परेशान होते हैं, यार इसका रेट गिर तो नहीं जाएगा सान भाई, आने वाले दिनों में साल 2 साल में हम ब्रीड को बढ़ा लें, और जब जितनी देर में हम बढ़ाएं तो इतनी देर में इसका जो है रेट वो गिर जाए। तो आपको बताता चलूँ कि जो है इसका रेट नहीं गिरता। और इसकी जो ब्रीड है वो अगर आप एक पेयर की देखें तो वो 4 से लेके 7 तक एवरेज अंडों की, एक क्लच की, एक क्लच जो गोल्डन फिंच का 4 से लेके 7 तक जो है अंडों की एवरेज है, यानी कि 4 5 6 7 तक की। अब एक बच्चा आप जो है 2500 3,000 का जस्ट सेल्फ जो है, जिसके मुंह पे जो है 2 3 डॉट होते हैं, वो भी लगाएं आप, तो आप देखें कि आपके एक क्लच में अगर आप 5 बच्चे भी लगा रहे हैं, 4 5 बच्चे भी, तो आपके 12 15 हज़ार रुपए के एक क्लच में आते हैं। और गोल्डन फिंच एक माह में 2 क्लच भी कर जाती है, और अगर किसी की अच्छी डाइट प्लान है और अच्छे विटामिन दे रहा है तो ये तीसरा क्लच भी कर जाती है। ठीक है, तो आप देखें कि एक बच्चा 3,000 रुपए का और अंडे देती है 4 से 5। अगर एक क्लच में आपके पास 15,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, 12 से 15,000, तो 3 क्लच में आपके पास 40 से 45,000 रुपए आ रहे हैं। तो आप देखें कि एक जोड़ा अगर आपको 15,000 रुपए वाला जोड़ा जो 100 रुपए की फीड खा के आपको 30 40 हज़ार रुपए का मुनाफा दे रहा है, गिरे से गिरा भी 30,000 का भी आप लगाएं, 2 क्लच भी लगाएं, तो मुझे बताएं कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतना पैसा है। ठीक है, और अगर मैं इसके क्लच की बात करूं तो साल में ये पूरा साल ब्रीड करती है। सिर्फ सर्दी में हवस के दिनों में आपने क्या करना है कि आपने सर्कुलेशन ज़्यादा रखनी है, एग्जॉस्ट चला के रखना है, और कूलर अपने को चला देना है। कोशिश करें डायरेक्ट हवा ना पड़े ठंडी, इन्हें ठंड से मसला होता है, थोड़ी सी हवा जो है वेंटिलेशन बन के है। अक्सर लोगों को नहीं पता, वो सामने रख के गोल्डन को कूलर चला देते हैं, बाद में गोल्डन फूल जाती है, वो कहते हैं यार ये क्या मसला आ रहा है। अपने कमरे में नमी ना रहने दें। जब कमरे में नमी होती है उस वक्त आपका बर्ड जो है सर्दी महसूस करता है, इसके पाँव में सर्दी लगती है। तो जितना खूबसूरत बर्ड है उस लिहाज से ये थोड़ा सा नाजुक भी है, क्योंकि इसमें जो गोश्त है वो बहुत थोड़ा सा होता है। जितना कम गोश्त होता है उतनी कम बर्ड की कैपेसिटी होती है। तो जो है बर्ड का मैं बताता चलूँ, इसका जो टेम्परेचर आप रखें 25 से 30 के दरमियान, और जो आपकी नमी है वो 50 से लेकर 70 के दरमियान होनी चाहिए। कि मेरी जो नमी है वो बहुत अच्छी है, और इसीलिए मेरा बर्ड जो है सारा माशाल्लाह खुश भी है। आप मेरे पूरे फार्म में देखेंगे सारे बर्ड आपको हेल्दी एक्टिव नजर आएंगे। मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जिसमें 100 रुपए की फीड खाए और मुनाफा 30 से 40 हज़ार। तो गोल्डन फिंच पूरे 12 माह ब्रीड करती है। आप देखें, अगर आप इससे 12 माह ब्रीड ले लेते हैं एक कॉमन जोड़े से, तो आप मैं कहता हूँ आप 45,000 भी छोड़ें, 30,000 भी छोड़ें, 20,000 भी लगाएं, ठीक है, 20,000 भी, एक सिर्फ 10 बच्चे या 5 7 8 बच्चे लगा लें, सिर्फ 7 8 बच्चे,
1 माह में। तो आप देखें कि ये 2 क्लच, अगर इसके अंडे आप गोल्डन के नीचे फोस्टर कर देते हैं। अच्छा, वीडियो में आपको बताता चलूं, जो दोस्त पूरी वीडियो नहीं देखेंगे वो कहेंगे यार 2 से 3 क्लच बता रहा है भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, जिनको पता ही नहीं है, जो सारी जिंदगी भैंसे चराते हैं और कमेंट जल्दी से आगे कर देते हैं, और भाई अंडे फोस्टर करने होते हैं बेंगलाइज के नीचे, वो बता रहा हूँ। तो भाई कमेंट कम किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इनके अंडे उठा के जो है बेंगलाइज के नीचे फोस्टर करने होते हैं। एक जोड़े के साथ 3 पेयर फोस्टर चलते हैं, और आप इनके अंडे उठाते जाएं और फोस्टर करते जाएं। अगर आप इसके अंडे उठा उठा के फोस्टर करते जाएंगे हर माह, तो मैं कहता हूँ आपने एक जोड़े से 6-7 बच्चे भी अगर हासिल कर लिए ना, ठीक है, तो आपके 20,000 रुपये अर्निंग है, और 15,000 का जोड़ा, और हर महीने 20,000 रुपये। तो आप देखें, अगर आपका एक जोड़ा इतने दे रहा है, एक साल में कितनी आमदन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके 2,40,000 रुपये आप एक पेड़ से कमा सकते हैं। 2,40,000, 15,000 वाले जोड़े से 2,40,000 कैसे कमा सकते हैं। कि अगर आपके पास 10, 20, 30 जोड़े लगे हैं, लोगों ने 100 जोड़ा लगाया हुआ है, तो जिन लोगों ने 100 पेयर लगाया हुआ है, तो आप अंदाज़ा करें उनकी क्या आमदन होगी। और फिर इसको छोड़ें, आप इसको छोड़ें, आप ये देखें, इसके ऊपर म्यूटेशन है लटीनो गोल्डन, इसके ऊपर है ब्लू गोल्डन, ठीक है, इसके ऊपर ब्रोनो आ जाती है। तो आप ये देखें, ब्लू गोल्डन का इस वक्त बच्चा जो है ना, वो 10,000 रुपये का जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ आपने ब्लू गोल्डन से एक क्लच भी ले लिया, जिस बंदे ने एक क्लच भी ब्लू गोल्डन से ले लिया, तो 50,000 रुपये का क्लच आ गया ब्लू गोल्डन के एक क्लच से। और अगर आप उससे 12 क्लच ले लेते हैं, तो आपका 6 लाख हो गया सीधा सीधा। और जोड़े की कीमत क्या है? 40-45,000 रुपये। तो मुझे बताएं, कौन सा दुनिया का ऐसा काम है जो 40-45,000 रुपये लगा के 6 लाख घर बैठ के घर के किसी भी कोने में जो है आप कमा सकते हैं। लोग इतनी इतनी तालीम हासिल करके बाहर के मुल्क जा रहे होते हैं, यहाँ हमारे पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं मिलती, धक्के खा रहे होते हैं। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से कि घर के किसी भी कोने में, छोटी सी जगह में आप बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे वापस बढ़ लूँगा। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरा यही नंबर है, यही मेरा चैनल है, यही फार्म है, एक ही जगह पे मेरा सेटअप लगा हुआ है। आप जब मर्जी लेके आएँ। मैं एक टाइम में जो है 2 से 3 करोड़ रुपए की परचेजिंग कर लेता हूँ। लोगों के पास माल ही नहीं है। अभी मुझे बच्चा चाहिए, 100 बच्चा चाहिए ब्लू गोल्डन का, 100 कॉमन का चाहिए, 100 लोटीनो का चाहिए। अगर किसी के पास है, नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप रब्ता कर सकते हैं। और कॉमन गोल्डन के मुझे पेयर चाहिए तकरीबन 50, लटीनो के भी चाहिए, ब्लू के भी 25 पेयर चाहिए ब्लू गोल्डन के। तो नहीं है किसी के पास। क्या, कहाँ से बर्ड, अच्छे बर्ड नहीं है लोगों के पास। तो अगर किसी के पास हैं गोल्डन फिंच में, जावा में, जितनी भी फिंच की आप मेरी वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं, सब जितनी भी फिंचेज हैं, सब के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल गया होगा फिंचेस गोल्डन का क्या मुस्तकबिल है। तो ये सारी फिंचेस की किंग फिंच है, लेकिन ये थोड़ी सेंसिटिव है, इसलिए लोग इसे लगाने से डर रहे होते हैं। तो आपका डर भी निकाल दिया है कि रोनी वेट और सिकैट, जिस बंदे के पास रोनी वेट सिकैट है और उसका टेम्परेचर जो अच्छा है, तो वो इसको बिला झिझक लगाए। और अगर किसी बंदे के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टर है, और वो कहता है कि यार मैं जो है एक महीने का चाहे 10 लाख रुपए कमाने तक सोच रहा है वो, तो आप फिर ब्लू गोल्डन लगा लें मेरे कहने पे। ठीक है, 50 पेयर लगा लें। मैं कहता हूँ 10 लाख कैसे नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा। मुझसे रब्ता कर ले, मैं उसको बताऊंगा 10 लाख कैसे आएगा। तो भाई ये इससे तो 10 लाख कमाना कोई मुश्किल नहीं है। 10,000 का एक बच्चा है, और ठीक है 50,000 के एक क्लच भी आप उठा लेते हैं। 3 क्लच देती है गोल्डन फिंच, दो भी लगाएं तो 10 बच्चे आते हैं। मैं कहता हूँ 10 भी नहीं आए, 5 आते हैं। आप देखें, आप थोड़ा सा बड़ा करके बच्चे को बेचें तो आपका कहाँ पे बात जाती है। आप 50,000 रुपये भी लगाएं ना भाई, एक माह के तो 6 लाख रुपए बनते हैं एक जोड़े के। और 50 जोड़ों के कैलकुलेशन करें ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा साल के कितने पैसे बनते हैं। 50 जोड़ों के कितने बनते हैं और साल के कितने पैसे बनते हैं, तो वो आप कैलकुलेट कर लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जा सकती, कुछ बातें पर्सनल होती हैं। इस वक्त जो है फिंच की जो पोजीशन है, लव वाले सारे इधर मूव होना शुरू हो गए हैं। लव गिरना शुरू हो गया। क्रीमिनो अल्बाइनो जो है 20,000 पे आ गया, जो 30-35,000 का था, और ये नीचे थोड़े से आना शुरू हो गए। इस वक्त जो है लव वाले सारे इधर आना शुरू हो गए, जावा की तरफ आना शुरू हो गए। जावा का सबसे अच्छा फायदा किया लव वालों को। लव एक अच्छी वैरायटी है, लगानी चाहिए कमर्शियल आइटम, वो भी अल्बाइनो क्रीमिनो अगर लगाएं तो। और डैकिनो सबसे अच्छा बर्ड अल्बाइनो क्रीमिनो डैकिनो है, वो लगाएं। लेकिन आजकल उनके भी रेट जो है थोड़े मार्केट में थोड़े डिस्टर्ब जा रहे हैं, लेकिन वो भी इधर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि जो फिंच के रेट हैं वो दिन ब दिन जो है अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं।
फिर इसकी ब्रीड जो है, जिस तरह लव बर्ड की ब्रीड गर्मियों में आकर रुक जाती है अप्रैल मई में, और फिर 4 माह बंद रहती है, तो इसकी पूरा साल चलती है। ये ऐसे जैसे आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन सैलरी भी नहीं बल्कि इसकी डेली की आमदन अगर किसी के पास ज़्यादा पेयर लगे हुए हैं। जावा का सबसे बड़ा लव बर्ड वालों को फ़ायदा ये है, जितना बचा कुचा दाना होता है, बड़े बड़े जितने फैंसियर हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो सारा अपने लव बर्ड का दाना इकट्ठा करते हैं और थोड़ा सा हवा लगवाते हैं और सारा उनके आगे फेंक देते हैं। जावा आपका बचा कुचा दाना खा के आपको लाखों रुपए की है आमदन देता है। तो जावा भी लगाओ। और इस वक्त डायमंड पायर डव बहुत अरूज पे है। डायमंड पायर डव जिस बंदे के पास नहीं है वो आप लगाएं। डायमंड पायर डव भी इस वक्त बहुत अच्छे जा रही है। रेड पायर्ड, डायमंड पायर्ड, ब्लू पायर्ड, सिल्वर पायर्ड, ये बहुत अच्छा जा रहा है। कॉमन गोल्डन, ब्लू गोल्डन, येलो गोल्डन, ये भी अच्छा जा रहा है। और इसके अलावा फान जावा, वाइट जावा, सिल्वर और ग्रे, ग्रे फोस्टर के तौर पे लगाएं या स्प्लिट लें तो ये भी अच्छा जा रहा है। ज़ेब्रा फिंच वालों के लिए खुशखबरी है, जो कहते थे 100-200 का पीस हो गया है, तो भाई दोबारा मार्केट में रेट अच्छे हो गए। मार्केट टच करके आओ, 400-500 रुपये का पेयर लेना शुरू कर दिए मार्केट में, और रेट दोबारा से बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो भाई अब ज़ेब्रा फिंच दोबारा लगाना शुरू कर दो और ज़ेब्रा फिंच बेचो ना, क्योंकि रेट अब दोबारा बेहतर होना शुरू हो गए हैं। और जिन लोगों के पास मुटेशन है वो मुटेशन रोक लें, क्योंकि अब मुटेशन जो है अपग्रेड होने वाली हैं और इनके रेट बड़े अच्छे होने वाले हैं। इस वक्त मुझे चारकोल की डिमांड आ रही, 50-50 हज़ार का लोग बच्चे का डिमांड कर रहे हैं कि यार हमें हमारा बुक कर लें, क्योंकि लोगों को अब शऊर आ गया है कि हर 2-3 साल बाद कोई भी फिंच की वैरायटी है, सिर्फ गोल्डन को छोड़ के, उसमें थोड़ा सा जो है वो नीचे एक दफ़ा जाती है। ये खुद ही मार्केट वाले जाल वाले रेट गिराते हैं और बाद में 2-4-5 महीने रेट को गिरा के सारा माल इकट्ठा करके बाद में फिर अपना माल रोक के फिर अच्छे रेटों में निकाल देते हैं। और जो छोटे बेचारे कस्टमर जो दिल छोड़ जाते हैं वो अपना सारा माल बेच देते हैं। तो भाई ऐसे ना किया करें, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप अपना माल होल्ड किया करें, किसी की बातों में ना आया करें और अपना अच्छा रेटों में माल बेचा करें। ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, आप मेरे भाई हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका मेरी वजह से नुकसान हो। और जो लोगों ने देखें, लाखों रुपए लोगों ने ज़ेब्रा फिंच में लगाए हुए हैं, और बहुत से ऐसे बेचारे स्टूडेंट हैं, बेचारी माएँ बहनें जो घरों में काम कर रही हैं और वो समझती हैं कि पता नहीं रेट इसका गिर गया क्या होगा, और लोग मज़ीद ऊपर से डरा देते हैं, हाँ जी रेट गिर गया अब नहीं लगाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक दफ़ा मार्केट को जाकर टच करें, अब रेट बेहतर होना शुरू हो गए हैं। अपना माल जब थोड़ा सा नीचे हो ना तो कोई कहे यार इतने में बेच दो, तो ना बेचा करें, उसकी ब्रीड करवाया करें, खुद ही रेट बेहतर हो जाता है। ये बात आपको मैं कोई बंदा किसी वीडियो में नहीं बताएगा जो मैंने आपको वीडियो में बता दी है। गोल्डन फिंच होगी, जावा होगी, डव होगी, ज़ेब्रा की अच्छी म्यूटेशन होगी, लबर्ड हो गया, सनकनोर हो गया, रा हो गया, कि जिसके पास भी हैं वो मुझसे रब्ता कर सकता है। कोई कहता है ना सेल नहीं होते, मैं लूँगा। आप मुझे वीडियो शेयर करके मेरे नंबर पे फ़ोन डायरेक्ट किया करें, व्हाट्सएप पे मैं कम रिप्लाई करता हूँ, डायरेक्ट मुझे कॉल किया करें। अगर किसी के पास है तो मैं मार्केट से अच्छे रेट में बर्ड खरीदता हूँ हमेशा। जिस बर्ड का रेट मार्केट में अगर 8,000 है, मैं 9,000 में बर्ड लेता हूँ, यानी कि वो अगर 8,000 में बेच रहा है तो मैं 1,000 रुपये ऊपर रख के आपसे बर्ड लूँगा। आप रेट पहले मालूम कर लें, फिर मुझसे रब्ता कर लें, सान भाई ये रेट है हमें मिल रहा है, आप क्या रेट देंगे, मैं उससे आपको 1,000 रुपये ऊपर दूंगा। ठीक है, ये बात आपको कोई बंदा भी नहीं बोलेगा। और अगर आपके पास गोल्डन, जावा, डव, सन किन्योर, रा, रिंग नेक और यहाँ तक के मकाओ, लोरी, काकाटू, कोई भी बर्ड है और आप सेल करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरा जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपका जो बर्ड है वो बीमार नहीं होना चाहिए और बूढ़ा नहीं होना चाहिए, पंजे टेढ़े ख़राब ना हो, साफ़ सुथरा बर्ड हो, ब्रीडर हो, सही कमर्शियल आइटम जिस तरह मैंने लगाई हुई हैं, चलने वाली आइटम हो, आसानी से बिकने वाली, जो मैंने वीडियो में बताई है, यही चीज़ें हो तो आप मुझे लाएं और मैं आपसे जो है ख़रीद लूँगा। और अगर आपने कोई भी बर्ड परचेज़ करना, गोल्डन, जावा, स्टार आउल, हैक्स, लॉन्ग टेल, डव, जितनी भी वैरायटी है सारे बर्ड की आप लेना चाह रहे हैं तो नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।